Yeah. Actually, everything is in our control. We are the creator of the thing, along with the, you can say, universe, ourself, our mind. So everything is in our control. It was very hard the beginning of saying that statement, but I'm experiencing now, so I feel yes, it is true. No, actually, what happened when somebody first time listen to it, the wisdom, Mm. they because there is a like fight between their old version of them and the new version what they are Yeah. listening, they have to become, and then there is a like we have to see who wins, the old one Mm. or new one. So we should always move forward. I used to say there is no U-turn in my life. So that's That really helps. I mean, that kind of beliefs. So you always, move forward. If somebody has to, come and meet you, then let them raise their vibration and meet you. But you don't have to let your vibration down for others. So let them match with their frequency or vibration and come to you. where are other people? Uh-huh. There is a Sunday, right? So Yeah. uh, So I'm surprised to see one thing. After the meditation, I think everybody is in a trance or somewhere. I don't know. They are on mute or either they are in trance. They're not. Then yeah. Hello, RKG. Good morning to everyone, divine souls. Uh, How uh, you guys are doing? Hope I'm sure you guys have been fired up, waiting for the meditation. Yeah, yeah. Hello, Shashiji. Hello, sir. mm. So we'll wait for others also to join before we can begin. थोड़ा वेट करते हैं दूसरे लोगों का. So any specific topic that you want to get more wisdom? So RKG, I think today we are able to hear you. Why don't you share your experience so far when you are practicing this wisdom? Oh yeah, definitely, sir. It's really great honor and privilege. Got an opportunity to share. Um, I have many. The time is really. I hope don't want to disturb this meditation precious time now because we have been planned for scheduled for some thing. But anyway, I just make it wrap up. Try to wrap up Okay. in quick. Yeah, yeah. Yeah, because we'll Yeah, while others are joining, हम बात कर सकते हैं. yeah. Please interrupt me as and when the time comes, so that I Yeah. stop the clock. Yes. Anyways, तो आपका uh, एक्सपीरियंस बताइए. yeah, as Dinesh ji has mentioned in the beginning, that old and new. So it was the same case. Like just I am also the similar way in the beginning of our journey. Do you want me to start from right from the beginning, or you want me how where from you want to go, Dinesh ji? Just highlights. All right. Okay. So the same skeptical way how any a newcomer we just come across and meet with new people talking about something new, maybe a wisdom or something, any other discussion. We be skeptical in the beginning itself because when things are being talking something new, a different way. So like the way how Dinesh is saying, whatever things happens in the life is just like your reflection of your thoughts. Yep. See in the reality. It's hard to accept. What is this? Because someone has been cheated me. That means do I really, or is my reflection, And then it then comes to the point when you be come into the reality of the world.
for few examples, then we will be coming slowly realize and be settled to the concepts what he teaches or the wisdom he tries to pour. So definitely, and over a period of some time, after we've been experiencing the practical realities is happening and his teachings, when we correlate these both, and one Yeah. has to come to the point. Yeah, one has to come to the point. The bottom line saying that this is it. There is no other, point in discussing or listening a different from what he's talking about. This is how I have so many practical experiences, which I could just talk about a few in a minute. Those are the one. I have a beginning. We've been travel for one purpose here in Hyderabad. Happen to meet each other. Don't know. I'm from Hyderabad, Telugu speaking guy. He's from Rajasthan and been settled here. And but of course we have similarities. Both are in a techies in a IT software field. He works for IBM. I just recently migrated from US. I work for the same similar platform of kind of working. So when we happen to meet a purpose of a noble goal called to make this Hyderabad city, which has been more prone to the non-vegetarian people living, and then being starts having a long gathering and all that. So where someone has to come and then make the path short to just try to transform, good side of the diet what we take and hygienic side of the place where we try to focus right from the children and all. That was the concept where we've been started with the Hyderabad Vegetarian Club (HVC). So that was the one trend where we started, and there are like-minded people have gathered, and we've been just the first time I saw him, encountered this guy, Mr. Our love guru, or I call him like love and light guru. I used to say L square guru. So that was the title which I've been given and been referring him all the time. So because in the beginning it really be make me doesn't make any sense to me. He talks about love and light, love and light. What this love and light is about? I never heard about it. I never taught even my ancestors or parents or from the gurus, whoever I've just come across right from the US. Because I've been to the US for so many retreats and all, big retreats. I know people right from different regions of the India come visit and then talk about a lot of wisdom and all. But what this light and love energy is about? Then I slowly step into the thing and then dig into it. And then he has been taken some challenges, has been proved in our team itself that talking about horoscope of anything you predict, anything he gives. Hey, what is this? He's like a tarot reader, or he's like a horoscope reader, or what all he had that energy makes him to be predict in the future things. So that was my curiosity made him to be so close to him, want to know more things about it and dig out, and that's how the traveling has happened. Wherever I have the first a toughest task in my life. Now here onwards, now he's my guru. I want to put him in front of him as if like we all put front of the God and say that hey, please do something for it. That is how it could be good or bad, whatever the intentions are, the thoughts are, the actions which I'm going to be do in the future. I try to admit and surrender to him that Dinesh ji, this is what is my problem is about. Of course, again, I want to hear add up something about third eye master Poonam. She is really so down to earth lady. I've been happened to just met her, in the same journey of divine path, and by adding up her, it's really accelerated the interest of mine to gear up the things because she could visualize and witness. But prior to her, and he was alone, he's talk about all that, and then it was something like there is no second person is being giving evidence saying that is it true or false, and then there is nobody to assure. But now the Poonam is there next to it, and then whatever they see in the space, or maybe with the third eye, and that really drives me very confident that yes, we have an evidentical proven track of millions, I mean what you call thousands of experiments what they have done and come across and passed. Not only that, we've been traveled here together with these true masters,
some places where we could able to they could able to heal the people, those who are totally bedridden people could able to stand, sit, and then walk. That really made me amazed because see, things are happening. I have some issue, Dinesh ji. You please can you guide me? Yeah, of course, he will come with some sort of a wisdom psychology. He can talk about, but making the people be healed just right there and then instantly is something really miraculous, or what you call the beyond powers of the capacity of a human, where they can do it. I just why I'm talking about this is we've been happened to recently go to the Pyramid Center right here in Hyderabad, where we've been met some this kind of disabled people or some severe issues they have in their lives, and they wanted to get corrected by doing the meditation over here in Pyramid Center. It's been called Kartal Pyramid Center. Mostly, I'm not sure how many people of you know those who are in the meditation. The Patriji is the lord of the pyramid meditation here in India. They call, and those centers, like the way he recently done the 12-12 ascension, all the temples and holy places where the mass gatherings of huge gatherings are there. So to energize or to escalate the energies up. So similarly, we have done been focused the first time I traveled with these people to this pyramid here in Hyderabad, where they have been energized and escalated the energy is so great and high. The even the management of the pyramid itself, they've been come and then be congratulated and been given very nice awards and rewards, which they really got front of my eyes witnessed there. So anyway, what time is like Dynasty? Hope I'm run up the time given. Yep. Definitely, we'll keep continue. Yeah, with I think we are a few, we very few. Yes. Yes, definitely it helps others also to believe in Say, the be wisdom. so thankful and be so much blessed whoever is there in the team or the group of this Divine Souls group. And I'm pretty sure that at the end of the as each and every day sessions, we've been boosted up with great energies, knowingly, unknowingly, and it's going to be the so helpful and so blessed. And then wanna be tag along with this kind of gurus, till the last breath. So that's what even my thing is about, and my experiences, which I have my own. So thank you so much, masters, Uday Master, and as well as the Love Guru Dinesh ji. So thank you for this opportunity to share me for kick, but maybe may make sense to some, or may it's incomplete, but we have a time anyway. For the down the line, we have more, a discussion to share about it. Thank you so much. Hand out to Guruji, Dinesh. Thank you. Thank you, RKG, for sharing your like whatever journey we had together, for your trust and for everything. So thanks for that. So आरके जी और हम काफ़ी जगह पे साथ में गए, और आई थिंक बहुत सारी चीज़ें मतलब उन्होंने विटनेस की थी कि इस विजडम के थ्रू आप कितनी अपनी पावर को जगा सकते हैं। तो मैं कभी भी ये नहीं कहता कि ये पावर सिर्फ हम लोग जगा सकते हैं, ये सारी कैपेबिलिटी आप लोगों के अंदर भी है। लेकिन इस समय जो आपका वर्जन है, हो सकता है आपने अभी ये एक्सपीरियंस ना किया हो, बट बिलीव मी, अगर आप इस विजडम को फॉलो करते हैं और अपने बिलीफ्स के ऊपर एक एक करके रिलीज करते हैं, तो वन डे आप अपने आप को देखोगे कि यू आर बिकमिंग द सेम, इवन मोर। क्योंकि जो हमें सिखाया गया है कि हम शरीर नहीं आत्मा है, आत्मा ही परमात्मा है। द मोमेंट विच हम शरीर नहीं आत्मा है, आत्मा यानी मल्टीपल रूल्स, मल्टी डायमेंशनल, मल्टी वाइब्रेशन। तो वहीं पे आप जैसे ही आप इसको अवेयरनेस में लाते हैं या इसको बिलीव करने लगते हैं, यू बिकम अ मल्टी डायमेंशनल बीइंग, और आप वो बन जाते हो जो भी डेफिनेशन आप गॉड की कहते हो। तो सेम चीज़ यहाँ होने लगती है आपकी लाइफ में। तो हमारा तो एक छोटा सा मकसद एक ही है, हर इंसान को ये बताना कि ये सारी कैपेबिलिटी आपके अंदर हिडन है, और हमारा एक ही पर्पज़ है उसको बाहर निकालना, आपको इनेबल करना, जो भी होना चाहते हैं ऑफ कोर्स। तो जो भी चाहते हैं कि यस मेरे अंदर एक डिवाइन पावर है, मैं खुद डिवाइन हूँ, तो उस डिवाइन तक कैसे पहुँचना है, वो पावर कैसे हमें जागृत करनी है, कैसे उसको रिवील करना है।
तो हम कोई भी पावर को जागृत नहीं करते हैं, एक्चुअली वो पावर ऑलरेडी हमारी सोल के पास सारी पावर होती है। तो हम क्या कर रहे हैं, वो जो बिलीफ है हमारे, जो उस पावर को रिवील होने से, यहाँ पर प्रकट होने से उसको रोक रहे हैं, उन बिलीफ्स को हम हटा देते हैं। इस लाइक आपके ऊपर पूरा आप सन हो, लेकिन आप सन का रिफ्लेक्शन आपको अर्थ की आपके रूम के अंदर नजर नहीं आ रहा है। तो हम वो जो आपके ऊपर जो सीलिंग है, जिसकी वजह से वो जो आपकी लाइट आप यहाँ पर फिजिकल रियलिटी में नहीं फील कर पा रहे हो, तो हम वो बिलीफ वाली सीलिंग को हटाते हैं। और जब आप ऊपर की सीलिंग को हटाना शुरू करते हैं, तो आपको मालूम पड़ता है आपकी वो जो पावर है, सब कुछ जो क्रिएटर कर सकता है वो सारी चीजें आप भी कर सकते हो। ऑफ कोर्स फिजिकल रियलिटी में हो तो हर लाइफ में हर चीज नहीं कर सकते। समटाइम्स यू पोज लिमिटेशन बाय क्रिएटिंग अ लिमिटिंग बिलीफ्स, कि नहीं मुझे नीचे पूरी पावर नहीं, उसमें से कुछ एक्सपीरियंस लेना है, तो यहाँ पे मेरे बिलीफ्स में रख के नीचे आता हूँ, ताकि वो प्रोजेक्ट होते रहें और मैं एक्सपीरियंस करता रहूँ। तो अभी हम जो बात करने वाले हैं, द सेम थिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस, ओल्ड वर्जन एंड न्यू वर्जन। सो एवरीथिंग हैपेंस फॉर सम रीजन। तो आज का ये डिस्कशन हमारा ही आज का हमारा टॉपिक होगा, बिकॉज दैट इज व्हाट वी आर डिस्कसिंग हियर। तो डिवाइन ने हमारे लिए आज यही चुना है। सो जस्ट सिट कंफर्टेबली, आप बैठ जाइए, जो भी आपका कंफर्टेबल पोजीशन है। अगर आपको लेट के अच्छा लगता है स्ट्रेट, तो वो करिए, जैसे भी आपको अच्छा फील होता है। और ये सेशन रिकॉर्डेड है, तो जो लोग नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं वो बाद में इसको देख सकते हैं। एंड इट हैज़ द सेम एनर्जी। बट ऑफ कोर्स क्या होता है कि जब हम रिकॉर्डिंग को प्ले करते हैं, तो टाइम हमारे सामने आ जाता है, वो कितने आवर्स का है। और एक जो हमारे बिलीफ्स होते हैं कि हमारी लाइफ बिजी है और शायद इतना टाइम नहीं मिलेगा, और पता नहीं अभी कोई आने वाला है, तो फिर हम वो पूरा मेडिटेशन नहीं कर सकते। बट व्हेन वी आर डूइंग इट, व्हेन इज हैपनिंग इन नाउ मोमेंट, तो फिर हम खो जाते हैं इसमें, फिर हम सब कुछ भूल जाते हैं। तो जस्ट कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाइए, या लेट जाइए, या जो भी आपकी मुद्रा है। जस्ट सिट कंफर्टेबली, क्लोज योर आईज जेंटली, 3 गहरी सांस लीजिए, टेक 3 डीप ब्रेथ्स। हैव एन इंटेंशन कि आई वांट टू रिवील जो भी मेरी आत्मा की पावर है, जो मेरे को इस लाइफ में मेरे को यूज़ करना है लाइफ में, वो रिवील करें, अपनी पावर रिवील करें। तो जैसे एज अबो सो बिलो, जैसा ऊपर है आत्मा, सो बिलो वैसा ही मेरे को फिजिकल रियलिटी में भी दिखे। तो हैव दैट इंटेंशन। अभी आप मंत्र को दोहराइए, मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, आत्मा ही मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा ही परमात्मा है। परमात्मा प्रेम है, मैं भी प्रेम हूँ, और उसी प्रेम को मैं फिजिकल रियलिटी में भी एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। एज अबो सो बिलो। एंड जो आपकी सोल है, वो हर चीज करने में सक्षम है। सो यू कैन आल्सो से आई एम हु आई एम, एंड दैट इज इनफ। आई एम
क्या हूं मैं? आत्मा। आई एम हु आई एम एंड दैट इज इनफ। मैं आत्मा हूं, ये इनफ है। Then I'm more powerful than what I think in a physical reality. Now come to the physical reality, your surrounding. आप अपने आप को देखिए, आप एक शरीर है यहाँ पर। आपके आसपास की जो रियलिटी है 1 बिलियन टाइम पर सेकेंड जो चेंज हो रही है, जैसे ही आपके थॉट पैटर्न चेंज होते हैं, आपकी वाइब्रेशन चेंज होती है, आपकी बॉडी चेंज होती है, आपका आसपास का एनवायरनमेंट भी उसी वाइब्रेशन का होता है। तो आपके साथ जो भी चीज़ है उसके इन्फिनिटिव वर्जन है। तो मेरी वाइब्रेशन क्यों चेंज होती है? अंडरस्टैंड दैट। क्योंकि जो भी बिलीफ को प्रेजेंटली हम लोग प्रोसेस करते हैं या जो भी सिचुएशन को हम फेस करते हैं, सो उससे रिलेटेड जितने भी बिलीफ हैं उसका प्रोजेक्शन होने लगता है। और लिमिटिंग बिलीफ्स का जो है वो वाइब्रेशन ऊपर नीचे होती रहती है, इसीलिए आपकी वाइब्रेशन भी ऊपर नीचे होती रहती है। सो व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड हियर, द बिगेस्ट टास्क और द मोस्ट चैलेंजिंग टास्क वी कैन हैव ऑन अर्थ, जो हम अर्थ पे कर सकते हैं, वो है अपनी वाइब्रेशन को मेंटेन करना। लेकिन जब तक लिमिटिंग बिलीफ है वो वाइब्रेशन अप एंड डाउन होती रहेगी। तो अगर आप चाहते हैं कि मेरी वाइब्रेशन हमेशा हाई रहे, तो आपको अपने लिमिटिंग बिलीफ्स यानी जितने भी बिलीफ्स को आप हटा सकते हो अपनी लाइफ से, एस एस पी एस ए पी एज सुन एज पॉसिबल, आपको उनको एक एक करके निकालना है। और ये विजडम आपकी हेल्प करती है उन बिलीफ्स को हटा करके अपनी वाइब्रेशन को हाई करने के लिए। सो वॉट एवर वर्जन यू आर हैविंग नाउ, you are becoming a different person in a physical reality by working on your beliefs. तो ये जो लिमिटिंग बिलीफ्स है ये आपने खुद चूज किए हैं अपने लिए एक्सपीरियंस करने के लिए, या आपने एक्सेप्ट किए हुए हैं फिजिकल रियलिटी में। तो इन बोथ द केसेस जब भी आप इन लिमिटिंग बिलीफ पे काम करते हैं आपका न्यू वर्जन क्रिएट होता है। आप और ज़्यादा हाई वाइब्रेशन में शिफ्ट हो जाते हैं। नाउ द थिंग कम्स, जब ऑलरेडी आप इतने टाइम से किसी बिलीफ को लेकर इतना सच मान रहे हैं, इतना प्यार कर रहे हैं, और ऑल ऑफ सडन कोई आपके आके बोलता है कि नहीं, ये आपका बिलीफ है, इसको हटाइए। फिर आप बोलते नहीं, मेरे आसपास तो यही सब कुछ हो रहा है ना, तो यही ट्रू है। मैं अगर इसको हटा देता हूँ तो लोग क्या बोलेंगे? क्योंकि मैं अलग जा रहा हूँ, मैं भीड़ से अलग जा रहा हूँ। एंड हम सब लोग बहुत कंफर्टेबल होते हैं क्राउड के अंदर रहने में। सो इमेजिन योर करंट वर्जन हैज लॉट ऑफ लिमिटिंग बिलीव्स, and because of that you are comfortable with the people who have a similar beliefs, who have similar vibes, vibration what you have. So that is your old version or present version. Now if you want to become a new version of yourself, high vibration version of you, multi-dimensional version of you, definitely you need to you need to release your beliefs one by one. And when you release the beliefs, you become a new person, high vibration person. Now the most challenging task is, you can assume there are two boats,
और यू कैन इमेजिन अ बेबी। तो एक बच्चा कैसे वॉक करता है? जब हम न्यू विजडम करते हैं वो एक कदम आगे बढ़ाने जैसा होता है। मे बी आपका जो लेफ्ट लेग वो पीछे, दैट इज योर रिप्रेजेंट योर ओल्ड बिलीफ। नाउ आपने न्यू बिलीफ की तरफ अपना राइट जो है पैर आपने आगे कर दिया है। यू कैन नॉट गो एनी वेयर अगर आपका लेफ्ट और राइट एट ए टाइम दोनों जमीन से लगे हुए हैं। यू कैन नॉट मूव। तो अगर आपकी वाइब्रेशन इस समय, जब आपके ओल्ड और न्यू बिलीफ होते हैं वो बिल्कुल इसी पोजीशन में होते हैं, लाइक अ स्मॉल बेबी और इवन एडल्ट, लेफ्ट लेग पीछे, राइट आगे। यू डोंट वांट टू लीव द लेफ्ट ओल्ड योर ओल्ड वर्जन, और वहीं पर आपने राइट आगे भी बढ़ा दिया है, न्यू विजडम भी ले ली है। नाउ यू आर इन अ डायलमा इन बिटवीन, यू आर हैंगिंग। कभी आप पीछे की तरफ जाने की सोचते हैं, कभी आप आगे की तरफ जाने की सोचते हैं। बट आई डोंट हैव टू टेल यू, if you have to move forward, what you need to do. You have to detach or lift your left leg in any case. Otherwise, you cannot move forward. You know that very well, practically also, in a physical world. So basically, if old beliefs you are having and you came to know about the new beliefs and you want to practice them, you have to leave the old beliefs. You have to let go those things. So once you step forward both the legs, then you see already one step ahead of your old version. तो एग्जैक्टली यही चीज होता है जब आपके ओल्ड बिलीफ होते हैं। लाइक से फॉर एग्जाम्पल, इफ यू से पीपल कम एंड ट्रबल मी, ये आपका ओल्ड बिलीफ है क्योंकि आप वही देखते हैं। बट इफ आई से दैट इज योर रिफ्लेक्शन एंड यू हैव टू करेक्ट योर सेल्फ, इट्स डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट। फिर आपको बोलेंगे कि सब बाहर रिफ्लेक्शन है, आप बोलोगे यस आई हर्ड देम। तो यू नो कि सब मेरा रिफ्लेक्शन है, लेकिन कोई बोल रहा है सिचुएशन में, प्रैक्टिकल लाइफ में जब वो सिचुएशन आ रही है, देन यू आर कंफ्यूज हियर। नहीं, हाउ इज पॉसिबल, सामने वाले ने कुछ गड़बड़ किया है, नॉट मी। देन व्हाट इज रिक्वायर्ड? प्रैक्टिकली डू इट। आप अपने अंदर वो बिलीफ्स को चेंज कीजिए एंड यू सी द आउटर वर्ल्ड में जो आप देख रहे हो रिफ्लेक्शन, दैट इज आल्सो गेटिंग चेंज। और एक बार आपने एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया है कि किस तरह से इनर रिफ्लेक्शन हमारे बिलीफ्स का आउटर वर्ल्ड में दिखता है, then you become more powerful being, because then you can control any situation of your life. And that is what a very important point to understand. You can change anything, whatever you are supposed to experience. You can go to that new level wherever you have to reach. Let's practice it, tune our mind. हम अपने माइंड को ट्यून करते हैं in this meditation. So with this wisdom, imagine you are in a current body. अपनी अवेयरनेस को अपनी बॉडी के अंदर शिफ्ट कीजिए। अपने बॉडी के एक एक पार्ट को फील कीजिए।
your fingers, your nails, your like body, head, legs, हर पार्ट को फील कीजिए, your stomach, your neck. एक बार पूरे बॉडी पार्ट्स के ऊपर अवेयरनेस को मूव कीजिए. टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट. जब आप अपनी बॉडी के ऊपर अवेयरनेस जा रहे हैं, हो सकता है कि किसी बॉडी पार्ट्स में आपको पेन भी फील हो. किसी बॉडी पार्ट्स में हेवीनेस भी फील हो सकती है. नाउ इमेजिन अ न्यू बॉडी ऑफ यू, हाई वाइब्रेशनल बॉडी, जहाँ पर ये पेन नहीं है, हैवीनेस नहीं है. Now I am requesting you to move your awareness from this old body to a new body, whereas there is no heaviness, no pain. That's a pain free. That's a healthy body. Just shift your awareness to a new body and move your old body aside. Side में अपनी body को हटा दीजिए, old body को, और new body जो कि perfect body है उसके अंदर अपने आप को switch कीजिए. So once you shift awareness into the new body, still you have in your memory or mind कि I have pain, some body part is heavy. So even you shifted your vibration to a new body, still you are thinking about the pain and heaviness. The moment you think about pain and heaviness, automatically with the speed of 1 billion times per second, your awareness shift back to your old one. Now you again started feeling pain in your body, the heaviness. Why? Because now you are focusing on a pain that is a low vibration, and your body already again shifted to the old one. So this is happening all the time in your life. How many version of body do I have? कितने वर्जन है बॉडी के इस तरह के वाइब्रेशन. तो आप जितनी भी वाइब्रेशन इमेजिन कर सकते हैं, वो सारी बॉडीज एग्जिस्ट करती है एट द सेम टाइम इन अ फिजिकल रियलिटी. और जहाँ भी आपकी अवेयरनेस जाती है, जिस भी बॉडी पार्ट्स के ऊपर जाती है, और जहाँ भी वहाँ की प्रॉब्लम्स में जाती है, उसको एनर्जी देना शुरू करते हैं, एंड योर वाइब्रेशन चेंज होती है, फिर आपकी बॉडी स्विच हो जाती है. सो दैट इज हाउ द ओल्ड और न्यू वन वर्क्स. It can be the old one may have the pain, old one may have the beliefs, some limiting belief. No, I should get up and do first this, not any other task. If I don't take bath, I should not even eat, even though like my body needs food. So you have so many beliefs
which may be good or bad also. If it is giving you joy, definitely it's a good to have the belief. Any belief which gives the peace, which gives you the joy, which create a love within you, or it's like if it is a self love, if you live in a harmony and you are able to maintain the love energy, then those are a good beliefs. You can keep it. But if it is creating a low vibration energies like fear, judgment, comparison, अगर इस तरह की चीज आ रही है तो you have to release them. If you don't release them, this belief will bring you down. ये beliefs जैसे आप सोचेंगे ये लाइफ में इवेंट्स होगी, आप नीचे आ जाएंगे, आपकी बॉडी नीचे स्विच हो जाएगी, हो सकता है आपको हेडेक शुरू हो जाए. हमारे बिलीफ्स जो होते हैं कि सर्दी है तो मैं सर्दी है तो सर्दी लगेगी ना. बट देर आर पीपल, उनको सर्दी नहीं लगती, उनके बिलीफ नहीं है ऐसे. अर्थ के अर्थ के ऊपर है तो ग्रेविटी तो रहेगी ना. बट देर आर मेनी बीइंग्स ऑन द अर्थ, उनके लिए ग्रेविटी का कोई इम्पैक्ट नहीं है. So why they are different from us? Because their beliefs are different. हमें हवा में उड़ने के लिए टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ती है क्योंकि हमारे बिलीफ हैं कि हम जमीन पर तो चल सकते हैं लेकिन आकाश में उड़ नहीं सकते हैं. ओनली बर्ड्स कैन फ्लाई. बट यू नो देर आर मेनी पीपल हु कैन फ्लाई आल्सो फ्रॉम योर एंशियंट टेक्स्ट. अगर आपने देखा है तो काफ़ी एंजल्स हैं, काफ़ी देवी देवता हैं, उनके बारे में आपने सुना है, वो उड़ सकते थे. देन व्हाट इज द डिफरेंस? यस, बिलीफ्स, लिमिटिंग बिलीफ्स. तो इफ यू वांट एज अबव सो बिलो, जो ऊपर है वही नीचे है, जो पावर ऊपर है वही नीचे आपको रिवील हो. सो योर ओनली टास्क इज टू एक्सपीरियंस द बिलीफ, अंडरस्टैंड इट, एंड इफ you don't want that, release it. As simple as. Then it is easy. And do experiment. I always say do experiment. Because spirituality जो भी wisdom होती है साइंस होती है, एडवांस साइंस है. And once you practice it, you feel how powerful you are. How you can shift from one body to other body, how you can shift from one reality to other reality, how you can shift from one version of you to the other immediately. You may have doubts. It's working for you, but it may not work for me. Yes, you might have some different beliefs, set of beliefs, limiting beliefs. But if you release all of them, I might have only 3 or 4, you might have 10 or 12. So to reach to the same level, I may have to release maybe 3 or 4, or you have to release only 10 to 12, or some people may have only one belief. If they release one belief, they will do immediately. So only difference why others are able to do, we are not able to do, because we have some limiting belief, or we have more limiting belief which we are not aware of. Why we are not aware of? Because all the beliefs, whatever you have, you believe, this is the like reality. That's the fact. That is how, that is what you experience. That is what you feel is true.
That's why it's your belief. So beliefs is what? Whatever you feel is true, that become your belief. If you feel other people come and hurts me, दूसरे लोग आके मुझे हर्ट करके चले जाते हैं, इफ यू हैव दैट बिलीफ और आपने इसको सच मान लिया, तो आपकी लाइफ में होने लगेगा, प्रोजेक्ट होने लगेगा. बट इफ यू फील कि एवरीथिंग इज माई रिफ्लेक्शन, देन ओनली यू विल कम टू नो ओके दिस इज समथिंग आई कैन चेंज इट. फिर आप अपने बिलीफ के ऊपर काम कीजिए, उन एनर्जी को रिलीज कीजिए. देन यू विल सी थिंग्स आर चेंजिंग इन आउटर वर्ल्ड एंड इट्स अ साइंस, सो इट वर्क्स. Practically you can do it. So tell why I'm telling this, not to you, to your physical mind, to your awareness. So your physical mind can help you, and even a physical mind may think, okay, let's do it. Whatever wisdom you hear here in this meditation session, जो भी आप यहाँ पर सुनते हैं यहाँ पर, वो सारी चीजें आप प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं. ओनली डिफरेंस है तो नंबर ऑफ लिमिटिंग बिलीफ्स वन पर्सन में है. So you all have that power. So first believe in this. We all have the power. My soul is very powerful. My soul is able to do anything. Everything is possible for my soul. And then say, I'm not a body, I'm a soul. Done. अगर आपके फिजिकल माइंड ने बिलीव कर लिया कि आप बॉडी नहीं सोल हो, फिर सोल के बारे में जो भी आपके बिलीफ्स हैं, और आपने ये भी मान लिया कि सोल ही मेरी परमात्मा है, अगर आपने इसके ऊपर बिलीव कर लिया है, तो जो भी परमात्मा के रिलेटेड आपके बिलीफ्स हैं, ऑटोमेटिकली वो आपकी लाइफ में रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाते हैं. एंड यू कैन इजीली देन रिलीज लिमिटिंग बिलीफ्स फ्रॉम योर लाइफ, क्योंकि आप ऑलरेडी हाई वाइब्रेशन में आ चुके हैं, तो यू कैन इजीली रिलीज द लो वाइब्रेशन थिंग्स. So that is what you need to practice and repeat this mantra. मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, आत्मा ही परमात्मा है. और मेरे को लिमिटिंग बिलीफ को चेंज किस में करना है, लो वाइब्रेशन एनर्जी को चेंज किस में करना है, देन यू नो प्रेम. तो आपके फिजिकल माइंड ने अगर इसके ऊपर बिलीव कर लिया है कि दैट इज आवर एनर्जी, ट्रू सेल्फ, ट्रू एसेंस इज लव, अनकंडीशनल लव, then your life is very straightforward. You know the destination. Every moment you have to reach to unconditional love. Every situation you behave like unconditional love. Every situation. That's a very simple thumb rule. Whatever happens, be in unconditional love. Whatever happens, be in unconditional love. That's the only task you have to do. And if you are not able to do because of some other beliefs, people will take advantage and other thing, then slowly remove some of the beliefs, experiment. You're confident, you'll be confident then, okay, yes, it's working. और आपको लगता है लोग एडवांटेज रहेंगे, वो बिलीफ भी हटा सकते हैं आप देन. So if any opposition comes from your physical mind or from you or from any other person, so don't get disappointed. Just simply thinks, yes, I have to release it. All the doubts, होगा या नहीं होगा, सबको रिलीज करते जाइए. And have only one thing, yes, it works. It's going to work. There is no other choice.
then you will see things are working and you are easily shifting from your old version to the new version. Now you shifted to a body which is having a pain and little bit heaviness in your leg or somewhere. Now again think each and every part of your body is working perfectly and you are in a new body where you feel light, everything is working perfectly. If you are not able to think, maybe for few seconds, hold the breath in your throat. Your thoughts flow will be stopped there, and then you can switch to a new high vibration body. If you practice it, you can instantly release your pain body and you can feel light body is all in your hands. So that is how you can shift from your old version of you to the new version. Hope this meditation, this wisdom will help you. So instead of saying, I'm like this, other people are like that, just try to change and you can do it. I trust you, you can do it. Because I was able to do it. Just difference is number of limiting beliefs one person might have. So with this intention, with this wisdom, you can just move your body and tell your physical mind it's a weekend and we can do many things together. We can try new different things. Let's figure out the limiting beliefs and get rid of them and be a high vibrational being. So with unconditional love, unconditional support from your soul, higher mind, from universe, from God, whatever you say is all same. But if you still believe, they are different, that's okay. But your soul only is going to take care of everything. So with this unconditional love and support from your soul, always, every moment, promise yourself you are going to experiment these things and witness how powerful you are. Rub your hand, अपनी आइज पर लगाइए दोनों हाथों को और धीरे धीरे अपनी आइज बंद कीजिए. तो आप में से कितने लोग हैं जो अपने नए पुराने बिलीफ्स को, लिमिटिंग बिलीफ्स को हटा के अपनी लाइफ को चेंज करने वाले हैं? हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव नाउ कि यू कैन चेंज इट? जस्ट अनम्यूट कर सकते हैं. So anyone feels they can change their physical reality, outer reflection by changing their inner belief? कितने लोग हैं? Would love to hear from you.
आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं और आप ये भी बता सकते हैं कि कौन से बिलीफ, लिमिटिंग बिलीफ को आप हटाने वाले हो आज। और बिलीव मी, जितने भी रिलीजियंस के बिलीफ हैं, जितने भी हमारे दूसरे लोगों के बारे में बिलीफ्स हैं, जितने भी हमारे अर्थ के बारे में या दूसरे प्लेनेट्स या किसी भी और लिविंग और नॉन लिविंग के बारे में बिलीफ्स हैं, वो हमारे इनर बिलीफ्स के रिफ्लेक्शन है। तो फिजिकल रियलिटी में जो भी एग्जिस्ट करता है वो सब बिलीफ की वजह से करता है, यानी एनीथिंग व्हाट एवर यू सी कैन बी चेंज। आई लव टू हियर फ्रॉम यू, क्या चेंज करना है आपको? वैशाली जी बोल रहे हैं कि वो करने वाले हैं। वेरी गुड। रामाकृष्णा जी ने तो काफी बिलीफ को चेंज किया, आई नो दैट वेरी वेल। पूनम जी ने भी बहुत सारे बिलीफ को चेंज किया है। सर ओल्ड वर्जन से न्यू वर्जन में जाना है ना? हम्म। या आपके जो ओल्ड वर्जन में ओल्ड बिलीफ के साथ आप रह रहे हो, तो न्यू बिलीफ्स अगर आप या तो बनाते हैं या न्यू जो एग्जिस्टिंग है उनको रिलीज करते हैं, तो आप न्यू वर्जन में चले जाते हैं। तो यू कैन डू एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। और ये सब डुएबल है, मतलब इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, सब पॉसिबल है। तो एक बार आपने इस चीज को प्रैक्टिस कर लिया ना, तो आप कुछ भी चेंज कर सकते हो अपनी रिलेटिव में, कुछ भी। हेलो सर। हेलो। हाँ सर, मैं थोड़ा कुछ शेयर करना चाहती हूँ। बिल्कुल। सर, जैसे कि डेथ से जो बिलीफ जुड़ा हुआ था, फियर वाला एक, कि बहुत किसी की डेथ हो गई तो बहुत पेन हो रहा है, बहुत तकलीफ हो रही है और चिल्ला चिल्ला कर रो रहे हैं, इस तरीके का जो अंदर से जो पेन आता था, पेन की वजह से ये सब होता है ना सर। या। तो इसका मैंने अनुभव लिया सर कि 13 साल पहले मेरे फादर की डेथ हुई थी। उस समय मुझे इस चीज से निकलने में करीब 2 से 3 साल लग गया सर। हर दिन वही सिचुएशन, वही सीन, सब कुछ मुझे दिखते थे, मेरे माइंड में वही चलता था और मैं निकल ही नहीं पा रही थी। मैं सबके साथ हूँ लेकिन फिर भी मेरे थॉट चल रहे हैं, मुझे मेरे फादर दिख रहे हैं और मैं जैसे कि बहुत ज्यादा फादर से प्यार करती थी और वो मुझसे कंटिन्यू जितना भी लाइफ का टाइम स्पेंड किया है उनके साथ पूरा दिखता था मुझे और मैं कंटिन्यू रोती थी। हम्म। लेकिन ध्यान में आने के बाद सर, आज 18 तारीख को मेरी मम्मी की डेथ हुई है और वो 15 दिन पहले मुझे दिख रहा है सर कि ये सब होने वाली है, ये घटना होने वाली है। और मेरा मन इतना शांत है कि मुझे कोई तकलीफ नहीं हो रही है सर। जो पहले जो डर था कि अरे मम्मी छोड़ के चली गई फिर क्या होगी लाइफ, बिल्कुल नहीं। बल्कि मैंने ना, जो मम्मी को मैं तोल के रूप में देख रही थी कि मम्मी हाँ अभी इस फिजिकल बॉडी में है लेकिन अब वो दूसरी बॉडी में शिफ्ट करने वाली है। हम्म। तो मैं हमेशा उनसे कनेक्टेड रहती थी सर। और एकदम खुशी से मैंने अपनी मम्मी को जाते हुए देखा है, उस बॉडी से निकलते हुए भी देखा है और उनसे बात भी की है। और मैं बता रही हूँ सर कि मेरी मम्मी की डेड बॉडी को देखकर एक आंसू भी नहीं आया है मेरी आंख में। जब मुझे ये लग रहा है कि मम्मी कहीं गई ही नहीं है तो मुझे रोना क्यों है। इनफैक्ट मेरे भाई बहनों की हालत बहुत खराब हो रही है, रिश्तेदारों की, मैं उन्हीं को समझा रही हूँ कि मम्मी नहीं गई है कहीं, शांत हो जाओ। और मैं बिल्कुल नहीं रोई हूँ सर, और आज भी मेरा मन इतना शांत है। और उनका नेक्स्ट बर्थ भी हो गया, वो भी मैं देख पाई हूँ। तो यप। सर मैंने अपने बिलीव्स हटाए, फियर हटाया, डर हटाया और वो सब आपने मुझे सिखाया सर। तो मैं, अब कोई फियर बचा ही नहीं मेरे लाइफ में सर। आज अगर फिजिकल बॉडी में कोई है तो भी मैं बहुत खुश हूँ उनके साथ, और अगर वो बॉडी से निकल भी जा रहे हैं, दूसरी बॉडी में शिफ्ट हो रहे हैं, तो भी कोई फियर नहीं है मुझे। तो यहाँ पर कोई आपने
इतने सारे बिलीफ को तोड़ा है। एक तो कि अगर कोई मर हम्म, जाता है तो हमें दुखी होना चाहिए। जी। तो अभी आपने विजडम ली कि नहीं, मरने के बाद भी इंसान जो रहता है वो बॉडी, वो आत्मा ही, वैसे भी हम शरीर नहीं आत्मा है, तो तो आत्मा आज तो। सर मैं बात कर पा रही हूँ। जी, मैं बात कर पा रही हूँ अपनी मॉम से सर। वहां पे डेड बॉडी मेरे लिए कोई मायने नहीं रख रही थी सर। यस। कि ओके, ये शरीर का काम खत्म हुआ है, वो सोल तो मेरे सामने बात कर रही है मुझसे, तो मैं क्यों रोऊं। और मेरी मम्मी ने मुझे बहुत आशीर्वाद दिया सर। यस। और बहुत खुशी से वो नेक्स्ट बॉडी में शिफ्ट होते हुए मैंने उन्हें देखा सर। यस, एक्चुअली जो बॉडी लेकिन जो मेरे भाई बॉडी बहन ध्यान और या जो बॉडी हमारे सामने रहती है ना, जो हम जब बोलते हैं ना अवेयरनेस किसी बॉडी में रहती है हमारे सामने, वो लाइव दिख रही है, वो जो बॉडी अलग रहती है, और ठीक। जो डेड बॉडी होती है वो वैसे भी वो बॉडी नहीं होती है, क्योंकि उसकी वाइब्रेशन यस सर। चेंज हो गई है, तो दूसरा वर्जन बॉडी का रहता है वो। यस सर। तो इसीलिए ना जब आप बॉडी को देखते हैं तो आपको कई बार ऐसा लगता है कि अरे, अभी आपको ये लगता है ये अभी कभी नहीं मिलेगा, या हाँ। फिर वो लोनलीनेस की आ जाएगी, कैसे होगा क्या नहीं होगा। तो डेफिनेटली आप जैसे मेडिटेशन में आप उनसे बात कर सकते हो, तो ये भी पहले आपका ये बिलीफ होगा कि हम बात नहीं कर सकते, अब आपका बिलीफ है हम बात कर सकते हैं, तो वो न्यू वर्जन चेंज हो गया। पहले आपको लगता है कि मरना एक गलत चीज है, या मतलब इज समथिंग लाइक दुख करना चाहिए, अब आपको लगना है नहीं, मरने के बाद तो वो परमात्मा बन गए, एंड दे आर इवन मोर पावरफुल नाउ, दे कैन इवन हेल्प मी इन अ बेटर वे, एंड इवन लाइक उनका सफरिंग से हुआ है, एंड नाउ दे कैन सी द फिजिकल रियलिटीज से भी बाहर हैं, तो वो कर सकते हैं, और वो दूसरा एक्सपीरियंस ले रहे होते हैं किसी और फिजिकल रियलिटी में। तो वहाँ पे कितने सारे बिलीफ्स हैं इन बिटवीन, जो हमें सिखाया जाता है, बचपन से हमारे फिजिकल माइंड को ट्रेन किया जाता है, बहुत सारे बिलीफ हमने एक्सेप्ट किए, वो सब तोड़ना पड़ता है। तो ये जो आपने किया इसके अंदर इज नॉट ओनली वन और टू, बहुत सारे बिलीफ्स हैं जो आपने तोड़े, और आपकी जी अभी माइंड, फिजिकल माइंड आपको बिलीव करने लगा है कि यस, डेथ इज जस्ट एन इल्यूजन। यस सर। तो बहुत सारे बिलीफ वहां तक पहुंचने के लिए बहुत सारे बिलीफ हटाने पड़ते हैं। सो गुड, कुडोस टू यू। सिर्फ ना सुना था सर कि ना आत्मा है दूसरी जगह चली गई है, सिर्फ ये सुना था। लेकिन जब बिलीव्स को हटाए सर, तो आत्मा सच नहीं में जा रही फील थी। कर पाई, देख पाई हूँ आत्मा, ये सब कुछ। यस, आत्मा वहीं की वहीं रहती है, हर जगह आत्मा। यस सर। ऐसी कौन सी यस सर। जगह जहाँ आत्मा नहीं, फिजिकल वर्ल्ड में भी, नॉन फिजिकल वर्ल्ड में भी आत्मा हर जगह एग्जिस्ट करती है, क्योंकि आत्मा ही परमात्मा है, परमात्मा हर जगह एग्जिस्ट करता है। यस सर। सो तो ग्रेट। अब ये फियर हमेशा के लिए चला गया है सर। और अब मैं लोगों को भी यही ज्ञान देती हूँ कि ये कुछ नहीं हुआ है, कोई कहीं गया ही नहीं है, तो रोना क्यों है। यस। तो ये बहुत बड़ी चीज मैंने सीखी है सर ध्यान में आने के बाद। और एकदम मन को मेरी शांति मिली है कि ये विजडम हर एक के पास होना चाहिए सर, तो लोग फियर से मुक्त हो पाएंगे। थैंक यू सो मच सर, मुझे इतना थैंक। विजडम देने के लिए। थैंक यू सर। देखो, आप जो ड्रीम देख रहे हो, जो भी चीज आपको ध्यान में दिख रही है, कई लोगों का क्वेश्चन होता है क्या उस पर बिलीव करें या ना करें। यस सर। तो बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ दिखता है, लेकिन उसको उन्हें पता नहीं कि लाइफ में यूज करें नहीं करें। तो उसके लिए सर तो उन्हें ये लगता है सर कि ये मेरा फिजिकल माइंड बोल रहा है। यस। लेकिन वो समझ पाएंगे अगर कि मैं, ये मेरी आत्मा बोल रही है, सोल बोल रही है। तो अगर कोई भी चीज क्रिएटिव है, कोई भी क्रिएटिव है, कोई भी आपको वो दिख रहा है जो आपने अभी सामने नहीं देखा है, अगर वो दिख रहा है तो डेफिनेटली ऊपर से ही आ रहा है वो। यस सर। तो उसमें कोई डाउट या संशय करने का जरूरत ही नहीं है। अगर आपको कुछ दिख रहा है और जो आपने नहीं देखा है आज तक, तो यस डेफिनेटली सर। फिजिकल माइंड वही क्रिएट कर सकता है या वही सोच सकता है जो कि ऑलरेडी उसने परसीव किया या देख लिया है। लेकिन अगर कोई ऐसी यस। चीज आ रही है जो इसके पहले आपने कभी नहीं देखी है, तो हंड्रेड हम्म। परसेंट चाहे वो ड्रीम हो, चाहे वो आपके विजुअल्स हो जो आपको दिखते हैं, दैट इज ऑल द रियलिटी। हम्म। या तो इस लाइफ की या किसी और लाइफ की, किसी और रियलिटी की है, बट दैट एग्जिस्ट। इवन आप इमेजिन कर पा रहे हो, कुछ नया क्रिएट कर पा रहे हो, ऑल कमिंग फ्रॉम योर हायर माइंड। तो ये विजडम आप जब बिलीव करने लगते हो तो मम्मी के बारे में देख पा रही हूँ,
ये मेरे छोटे भाई ने भी देखा, जिन्होंने कभी ध्यान नहीं जा, Yeah. तो वो भी थर्ड आई Yeah. मास्टर ही है सर। यस, यस अपर्णा जी Yes. वैसे। नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं। अच्छा। हाँ। हम्म। ओके, तो यही है आपका ओल्ड वर्जन और न्यू वर्जन। जितने आप न्यू वर्जन, जितने लिमिटिंग बिलीफ हटाएंगे, आपकी वाइब्रेशन अनलॉक होती जाएगी, आपकी साइकिक पावर अनलॉक होती जाएगी, और आप आगे से आगे, आगे से आगे, आगे से आगे बढ़ते जाएंगे। यस सर। Okay, so keep experimenting, keep यस सर। all the things practically. सब प्रैक्टिकल करोगे तो आउटपुट आ जाएगा, एंड इट वॉन्ट टेक ईयर्स। कोई आपको साधना तपस्या करने की जरूरत नहीं है, जस्ट एक्सपेरिमेंट इट, चेंज योर, हाँ सी द रिजल्ट। ओके, सो सर। एनीवन एल्स वांट टू शेयर समथिंग? सर थैंक यू वेरी मच, सेशन बहुत ही अच्छा हुआ है सर, कुछ रोज हमें नया मिल रहा है। यस, क्योंकि ये फिजिकल माइंड का नहीं है, दैट इज कमिंग फ्रॉम द नॉन फिजिकल माइंड, हायर हायर माइंड, सोल। क्योंकि जब फिजिकल माइंड होता है, उसको ट्रेन करते हैं तो वो एक ही बात हमेशा करता है। लेकिन जब आप कनेक्ट हो जाते हो अपनी सोल, जब अपने आप को शरीर से ज्यादा मानने लगते हो, तो फिर यू बिकम इन्फिनिटिव। फिर आपका कोई लिमिट नहीं होता है। तो सर एंजॉय योर। एक्सपेरिमेंट समझ में आ रहे हैं। हम्म। सो कीप एक्सपेरिमेंटिंग इन योर लाइफ, कीप चेंजिंग योर लाइफ, और आप देखोगे कितने पावरफुल है आप सब लोग। तो मुझे तो खुशी होगी आप कभी वहां से अपने आप को टेलीपोर्ट करके दूसरी जगह पे आ जाएं। इतने बिलीफ जो भी लिमिटिंग, सबको निकालना शुरू कीजिए। डू सम एक्सपेरिमेंट, ट्राई टू मूव द थिंग्स फ्रॉम वन प्लेस टू अदर, उस पर वर्क करो। क्या पता कहीं ना कहीं आपकी साइकिक पावर हो। तो रिलीज योर साइकिक पावर, अपनी जो साइकिक पावर उसको रिवील करो, अपने अंदर जो छुपा हुआ खजाना है उसको निकालिए। एंड देन वी ऑल टुगेदर, अपनी अपनी गिफ्ट्स जो भी हमें मिली है, वी कैन मेक दिस वर्ल्ड अ वंडरफुल वन, वेरी ब्यूटीफुल, हेवन से भी कहीं ज्यादा। आपको तो लगता है हेवन ही सब कुछ है, बट पता है हेवन से भी बहुत आगे है। क्योंकि जो मैंने इंडियन टेक्स्ट में मतलब स्टोरीज में पढ़ा है, हेवन के अंदर भी लाइक वो स्टोरी सुनते हैं ना, इंद्र जेलस हो गया, उसने अटैक कर दिया, वो कर दिया, वहां पर भी अनकंडीशनल लव कहीं नहीं दिखा है। तो आई बिलीव इन दैट कि हेवन से भी कहीं ज्यादा और भी अच्छी जगह है, जो शायद आज तक किसी ने नहीं देखी है, या किसी ने लिखा नहीं है उसके बारे में, बात नहीं किया है, बट आई फील उससे भी कहीं ज्यादा है। बिकॉज आई नो मेनी पीपल, उनको बोला स्वर्ग में आपको जगह देंगे, हेवन में, एंड दे सेड नो वी डोंट नीड इट। तो मे बी वो लोग वो थे जिन्होंने एक्सपीरियंस किया है कि हेवन के भी बियॉन्ड बहुत कुछ है। तो डोंट से हेवन, जस्ट सी व्हाट इज दैट बियॉन्ड हेवन। क्योंकि हेवन में तो बहुत देखा था हमने, लोग जेलस हो रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, एक दूसरे पे देवी देवता राक्षस के बीच का युद्ध हमने इतना सुना है। क्योंकि हेवन भी हमने वहीं से सुना है। तो इसका मतलब इससे भी कहीं जा सकते हैं। तो उसको टारगेट कीजिए, अपनी सोल को टारगेट कीजिए। क्योंकि अगर आप सोल बन गए, देन यू आर कंप्लीट विद इन योर सेल्फ। सो आई एम हु आई एम, एंड दैट इज इनफ। एज अबव सो बिलो। थैंक यू। कीप एक्सप्लोरिंग। चलो मिलते हैं कल फिर नए मेडिटेशन के साथ में। और कल का कल ही डिसाइड करेंगे हमारी सोल्स वो मेडिटेशन क्या होगा।